हेलो चिल्ड्रेन, मैं आपकी बबीता मैम स्वयं सिद्धा ट्यूटोरियल से आज अपनी पहली वीडियो शूट कर रही हूँ। मैं क्लास 6th साइंस सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर से अपना वीडियो शुरुआत कर रही हूँ। फर्स्ट चैप्टर का नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। हमारा खाना कहाँ से आता है। तो मैं इस पूरा चैप्टर को पार्ट बाय पार्ट आप लोग को डिटेल से समझाऊंगी। आई होप you will get the better information from this video. So first we'll start food variety. Food variety means कितने प्रकार के खाना रहता है। ये तो हम सबको पता है। हम डेली क्या क्या खाते हैं। राइस खाते हैं, चपाती खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, कभी कभी मिठाइयाँ खाते हैं। बहुत सारे फूड आइटम हैं जो हम लोग डेली खाते हैं। सो वी आर हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आइटम्स इन आवर मील्स। दीज आइटम्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स। सो हम लोग डिफरेंट आइटम खाते हैं, जो आइटम की हर एक आइटम डिफरेंट इंग्रेडिएंट मतलब चीज़ों से बना होता है। जैसे हम लोग जो राइस खाते हैं वो दो चीज़ों से बना होता है, जैसे रॉ राइस और बॉइल्ड वाटर। सो फॉर राइस वी टेक रॉ राइस एंड बॉइल्ड वाटर। फ्रॉम these two ingredient we can make rice. So rice is the food item and ingredient are what? Raw rice and boiled water. But there are some food items which needs more ingredient like vegetable curry, in which we need different kind of vegetables, salt, spices, oil, turmeric, masala powder, like so many ingredients are used to make the vegetable curry. Like that, when we make roti or chapati, we need atta, some salt, pinch of salt and water to make the dough. Then for dal we need pulses, water, salt, oil, ghee and spices. Like this we are having different type of food items in our meal, and for these items and to make these item we need different ingredients. Okay, then we'll go to the sources of food material और these ingredients. हम ये ingredient कहाँ से पाते हैं? So there are two main source. One is plant and other is animal. तो दो सोर्स से हम लोग ये ingredient पाते हैं। एक तो हुआ पेड़ पौधे और एक हुआ जीव जंतु, एनिमल से। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। ये तो हम सबको पता है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्लांट से ही मिलते हैं। देन राइस एंड व्हीट ऑल्सो, विच आर द मेन ग्रेन्स वी आर ईटिंग इन आवर इंडिया। सो राइस एंड व्हीट ऑल्सो वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। Have you ever seen paddy? Paddy means what? Wheat fields. Have you ever seen? There rows of plants are there from which we yield wheat. So rice, wheat, fruits, vegetables, these all we get from the plants. But some food item like milk, egg and meat which come from animals. But there are some food items like milk, egg and meat which are come from animals. So plants are the sources of food ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits. So plants are the sources of food ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits, and animal provide us with milk, meat, eggs,
Which animals? Do you know which animals give us milk and meat, egg, etc.? Cows, goat and buffaloes are some common animals which gives us milk and milk product. And where do we get the eggs? From the hen. From hen we get eggs. So we are not only taking the plain milk only, we also taking the milk, varieties of milk products. What are the milk products? The milk products are butter, curd, cream, cheese, ghee, etc. These are the milk products we are getting from the animals. So there are two main sources of food item. One is plant and other is animal. Do you understand? Then we will go to the plants and animal products as food. Plants and animal products which we are discussing earlier, that's only given here. We eat many leafy vegetables. We eat fruits, roots, stems and even flowers. So earlier I said you that we get the food items from or food ingredient from plant, but the plant is eaten by us. The different parts of the plant is eaten by us. Like we eat some plants leaves only, like leafy vegetables, and we eat some plants fruits, some plants roots, some plants stem and even flower also we eat. There are many parts of a plant and we are eating all the part as food item. I will give you one by one example. Like when we use the leafy vegetables, only we take the leaf part. Some fruit also we take from the trees, and in the form of roots, what we eat in the form of roots? Carrot and radish. These are the root forms of food. And stems, have you ever seen we eat the stem of banana tree? Yes, that is in the form of the stem. And even flowers we eat. For example, pumpkin flower. Have you ever eaten pumpkin flower? Dipped in rice paste and fried, very tasty. So we are eating the flower also. Some plants have two or more edible parts. Edible means eatable. There are some plants, ऐसे कुछ पेड़ है जिनका हम सिर्फ एक ही हिस्सा नहीं खाते हैं, बहुत सारे हिस्से को हम लोग फूड आइटम के रूप से खाते हैं. जैसे एग्जाम्पल के तौर से सरसों क्या करते हैं हम? सरसों को छौंक में भी यूज करते हैं, मसाला में भी यूज करते हैं और उसका लीव्स उसका जो साग रहता है उसको भी खाते हैं. So the seeds of mustard plants gives us oil and the leaves are used as vegetable. Can you think of the different parts of a banana plant that are used as food? हम बनाना प्लांट का सभी चीज़ों को खाते हैं. उसका फ्लावर को खाते हैं, उसका फ्रूट को खाते हैं, उसका स्टेम को खाते हैं. सो ये तो आप लोग को पता ही होगा. सो जो हम प्लांट से पाते हैं वो कभी हम लोग फ्रूट के रूप में, कभी फ्लावर के रूप में, कभी लीफ के रूप में, कभी स्टेम के रूप में, कभी रूट के रूप में, हर पार्ट को हम लोग अपना फूड आइटम के हिसाब से यूज़ करते हैं, खाते हैं. अभी और कुछ फूड आइटम जो हमको प्लांट से मिलता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. स्प्राउटेड सीड्स मतलब अंकुरित सस्य. आप लोग तो मूंग देखे होंगे, चना देखे होंगे,
उससे क्या करते हैं हम लोग, उसको अंकुरित करके उसको खाते हैं। स्प्राउटेड ग्रेन्स, स्प्राउटेड सीड्स, जब वो स्प्राउटेड हो जाता है ना, उसका जो विटामिन्स मिनरल्स रहता है वो बहुत गुना बढ़ जाता है। तो हमारे शरीर के लिए वो बहुत स्वास्थ्यप्रद होता है। जैसे हम लोग क्या करेंगे स्प्राउट बनाने के लिए, हम लोग क्या करेंगे, कुछ मूंग दाल गोटा साबुत मूंग या चना लेंगे। ओके, जैसे पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन ए कंटेनर फिल्ड विथ वाटर एंड लीव दिस aside फॉर ए डे। नेक्स्ट डे drain the water completely and leave the seeds in the vessel. Wrap them with a piece of wet cloth and set aside. The following day, do you observe any change in the seeds? A small white structure may have grown out of the seeds. If so, the seeds have sprouted. क्या करते हैं हम लोग, पहले तो मुट्ठी भर, आपको जितना चाहिए उतना क्वांटिटी में मूंग या चना को आप लोग धो के एक बर्तन में ले लीजिए। अच्छे से धो के उसका जो गंदा पानी है उसको निकाल दीजिए। उसके बाद उसका मुंह को क्या करेंगे, एक गीला कपड़ा से बांध देंगे और ओवरनाइट उसको छोड़ देंगे। दूसरे दिन जब खोल के देखेंगे तो उसमें हम लोग को स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर, छोटे छोटे सफ़ेद कुछ उगा हुआ दिखेगा और वही होता है स्प्राउट्स। सो जब हम देखेंगे ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स, देन द सीड्स हैव स्प्राउटेड। इसका मतलब है सीड अंकुरित हो गया है। अब उसको हम लोग डायरेक्टली रॉ भी ले सकते हैं, कच्चा भी ले सकते हैं, बॉईल करके भी ले सकते हैं, और उसको टेस्टी बनाने के लिए उसमें कुछ स्पाइसेस, लेमन, ब्लैक सॉल्ट, ऑनियन, कोरिएंडर लीव्स डाल के उसको टेस्टी स्नैक्स के हिसाब से भी हम लोग ले सकते हैं। तो ये तो हुआ हम क्या क्या खाना खाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड आइटम के बारे में हुआ। उसका सोर्स हुआ, मेन सोर्स दो ही है, एक प्लांट, एक एनिमल। प्लांट से तो हम लोग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, राइस, व्हीट ये सब पाते हैं, और एनिमल से हम लोग मिल्क प्रोडक्ट, एग्स, मीट ये सब पाते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे हनी के बारे में। हनी ये भी हमारा एक फूड प्रोडक्ट है, फूड आइटम है। कहाँ से मिलता है, ये प्लांट आइटम है कि एनिमल आइटम है? ये एनिमल आइटम है। ये कहाँ से मिलता है हमको? बी हाइव से मिलता है। तो बी हाइव से में तो ऐसे ही हनी नहीं बन जाता है ना, उसके लिए कौन मदद करता है? बीज मदद करते हैं। ओके, हैव यू एवर सीन ए बी हाइव वेयर सो मेनी बीज कीप बजिंग अराउंड? कभी आप मधुमक्खी का छत्ता देखे हैं? वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे मधुमक्खी गुनगुनाते रहते हैं। वो लोग क्या करते हैं, बीज कलेक्ट नेक्टर। नेक्टर मीन्स द स्वीट जूसेस which they get from the flower, and then they convert it into honey and store it in their hives. तो मधुमक्खियाँ क्या करते हैं, फूलों से मीठा रस जिसको नेक्टर कहते हैं, स्वीट जूस, उसको लेके उसको हनी में कन्वर्ट करते हैं, हनी में बदल देते हैं, और उसको कहाँ स्टोर करते हैं? बी हाइव में स्टोर करते हैं। Flower and their nectar may be available only for a part of the year. तो फूल और ये जो नेक्टर है, उनका जो मीठा रस है, ये साल का कुछ ही महीने अवेलेबल होता है। पर जो बीज होते हैं ना, ये उनको कलेक्ट करके बी हाइव में पूरा ईयर के लिए वो लोग रख देते हैं, जो कि साल भर हम लोग हनी आराम से हमको मिल जाता है। सो फ्लावर एंड नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर, बट द बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर। इसी तरह हमको साल भर हनी मिल जाता है। ये तो हो गया
हम क्या खाते हैं, वो उसका सोर्सेस क्या है, कहाँ से आता है, और प्लांट से कौन सा फूड आइटम मिलता है, और एनिमल से कौन सा फूड आइटम मिलता है, हनी के बारे में, ये सब हमको पता चल गया। अभी इस चैप्टर में और एक चीज़ आपको दिया हुआ है, वो है व्हाट डू एनिमल्स ईट, मतलब एनिमल्स क्या खाते हैं। अच्छा, एनिमल्स तो बहुत सारे रहते हैं, जैसे डॉग है, कैट है, बफेलो है, गोट है, टाइगर है, लायन है, हाउस लिजर्ड, छोटा छोटा जो इंसेक्ट घर में भी जो रहते हैं, जैसे हाउस लिजर्ड, स्पाइडर, बटरफ्लाई, क्रो, बहुत सारे एनिमल्स है। तो क्या खाते हैं, आपको तो पता होगा डॉग क्या खाता है। डॉग को हम घरेलू खाना भी देते हैं, वो खाता है, और बाहर कुछ मिलता है तो जैसे क्या खाता है, वो स्मॉल एनिमल्स को भी खा लेता है, जैसे कहीं चूहा मिला तो खा लिया, कहीं कुछ मिला तो खा लिया। कैट भी ऐसा ही करता है कि वो घरेलू आइटम भी खाता है, और उसको स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स कुछ मिला तो वो खा लेती है, और मिल्क भी पीती है। कैट तो मिल्क भी पीती है। तो दूसरे दूसरे एनिमल का फूड हैबिट डिफरेंट डिफरेंट है, उसी के हिसाब से उनको 3 भागों में, 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। द एनिमल्स कैटेगराइज्ड इन 3 डिफरेंट कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट्स। व्हाट आर दे? हर्बीवोर्स, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। Herbivorous means the animals which eat only the plants or the parts of the plant. Okay, जो कि ओनली प्लांट को खाते हैं या द प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं, उनको ओमनीवोरस उनको हर्बीवोरस बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल डियर और काओ और बफेलो और गोट। सो जो एनिमल्स पेड़ पौधे खाते हैं या पेड़ पौधों से मिला हुआ प्रोडक्ट खाते हैं, उनको हर्बीवोरस बोला जाता है, जैसे हिरन, भैंस, गाय, बकरी, ये सब। देन कार्निवोरस, द animals which eat other animals. Okay, the animals which eat other animals, we said them carnivorous. For example, lion, tiger, ये सब है कार्निवोरस। सो जो पशु दूसरे पशु को खाते हैं उनको कार्निवोरस बोला जाता है, जैसे बाघ, सिंह, ये सब को कार्निवोरस बोला जाता है। एंड लास्ट कैटेगरी इज ओमनीवोरस। ओमनीवोरस जो दोनों के ऊपर निर्भरशील रहता है, प्लांट भी खाते हैं और एनिमल को भी खाते हैं। सो द एनिमल्स which eat both plants and animals, those we said omnivorous. For example, बियर ग्रास भी खाता है और एनिमल्स को भी खाता है। और क्या एग्जाम्पल है उसका, बोल सकते हैं आप? और क्या एग्जाम्पल है? एक तो मैं बोल दी बियर, और क्या है? कैट, डॉग, ह्यूमन बीइंग भी प्लांट खाता है और मीट मछली भी खाता है ना, एनिमल खाता है, तो हम लोग भी ओमनिवोरस है। सो जो प्लांट्स खाते हैं वो हर्बीवोरस, जो एनिमल्स खाते हैं वो कार्निवोरस, और जो दोनों को खाते हैं वो ओमनिवोरस। ये तो बहुत ही बचपन से आप लोग पढ़े होंगे, आपको मालूम होगा, फिर भी आपको ये चैप्टर में रिवाइज किया गया है इसके बारे में। तो ये हो गया हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट। तो इसमें क्या क्या दिया था? पहले वेराइटी ऑफ फूड, हम लोग क्या क्या खाते हैं दिन भर, देन द सोर्सेस, देन डिफरेंट प्लांट आइटम, देन डिफरेंट एनिमल आइटम, एंड एट लास्ट व्हाट डू एनिमल्स ईट
and the categories of the animals according to their food habit. लास्ट में ये चैप्टर अभी ख़त्म हो गया। लास्ट में इसमें कुछ दिया है कि जो भी फूड प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो सफिशिएंट नहीं है, सबको सफिशिएंट नहीं मिल रहा है। ये लास्ट में देखिए, आपका ये बुक का लास्ट में दिया गया है। वी नो डेट देयर आर मैनी अमंगस्ट अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड, जो कि सफिशिएंट, हम लोग जानते हैं कि हमारे बीच ऐसे बहुत सारे हैं जो कि सफिशिएंट, पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं पा रहे हैं। वी नीड टू फाइंड वेज, हमको कुछ रास्ता निकालना होगा, बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, जिससे कि बहुत खाना हमारे कंट्री में, हमारे देश में प्रोड्यूस हो सके, फूड आइटम प्रोड्यूस हो सके। एंड दैट इज़ नॉट एनफ, we should find the ways to ensure that this food is made easily available to each one of us. खाली प्रोड्यूस करने से नहीं होगा, कैसे हर एक इंसान के पास, हर एक खाने वाले के पास ये फूड आइटम पहुंचेगा, अवेलेबल होगा, उसके लिए भी हम लोग को रास्ता निकालना पड़ेगा। We have to find the ways. So this is all about the chapter 1, food and where does it come from, food and where does it come from. So यहीं पे मैं अपना चैप्टर ख़त्म करती हूँ। आगे हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे दूसरे क्लास में। अगर कहीं पे कुछ लैकिंग है मेरे पढ़ाने में तो मुझे कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो भी अच्छे कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं इससे इंस्पायर्ड होंगी और मैं और अच्छे वीडियोस अपलोड करूँगी। ओके, अभी मैं नया वीडियो बना रही हूँ तो मेरे पास ज़्यादा जुगाड़ भी नहीं है। मैं कुछ देसी जुगाड़ करके आज मेरा ये वीडियो बना रही हूँ। मेरे पास कैमरा रखने के लिए स्टैंड, माइक कुछ भी नहीं है। हो सकता है आप लोग को वीडियो का क्वालिटी थोड़ा कम लगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं क्वालिटी टीचिंग दे सकूँ। वीडियो क्वालिटी कैसा है मुझे नहीं मालूम, पर क्वालिटी टीचिंग देने के लिए मैं पूरा कोशिश करूँगी। अगर अच्छा लगा तो अच्छे कमेंट कीजिए, अगर आपको कुछ कमी लगा तो वो भी मुझे कमेंट के ज़रिए में बताइए। मैं रहती हूँ, बाय बच्चों।